Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 9 and unit is electrostatic. In last lecture, we have discussed about the Gauss law and that is related to the total flux. Flux किसके इक्वल होता है जी? This is total flux enclosed by a surface is E dot ds. And what the Gauss law state, total flux passing through a closed surface equal to the 1 upon epsilon naught into total charge enclosed by the surface. Gauss law का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? If we have distributed the charge on a surface, किसी भी आपने एक surface पे, that may be the symmetrical or unsymmetrical कैसी भी surface हो, and we can find the potential or electric field at a point with a easy mathematics, उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं. So in today lecture we will discuss the application of the Gauss law. Okay, so the content is, first we'll discuss about the charge conductor. Charge conductor का क्या significance है? If a conductor is placed in the electric field, how it behave, किस तरह से behave करता है, and if we distribute a charge q on the conductor and where this charge will stay, charge कहाँ रुकेगा और किस तरह से distribute होगा. ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि in the next unit we will discuss about the current and electricity. So if we know about the conductor property, it is very easy to understand electricity and the current. Okay, so first we will discuss about the charge conductor. Then we will discuss about the electric field and the potential due to a uniform charge sphere. So uniform charge is distributed on the sphere at a point that may be outside or inside. We will calculate the field. Then we will calculate the field due to the linear charge distribution. Then we find the field due to a plane sheet of the charge. Then we will find the field due to the charge conducting sphere. Okay, so one by one we are starting all the content. So first we are discussing about the charge conductor. बहुत ही ज़्यादा important होगा, ध्यान देना. So the first point about the conductor is the field inside a conductor is zero. क्या significance है? Suppose we have a shape. यहाँ मैं just wait. हम एक shape दिखा के चल रहा है and suppose this shape is an sphere. ये sphere है and the radius is r, radius r कह के चल रहा है and this is having the volume v. इसका एक volume है v and value कितनी है? This is 4/3 pi r cube क्योंकि हम sphere दिखा के चल रहे हैं. And suppose this sphere or this conductor is put into an electric field E. तो पहला पॉइंट क्या है? फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. तो बिकॉज कंडक्टर हैज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, अगर हम इसके इनसाइड में बात करें, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे, चार्ज अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो. जैसे मैं कहूं इस तरह से एक फील्ड क्रिएट होगी ई डैश का, टोटल ई इक्वल टू कितनी होगी? ई डैश इक्वल टू कितना होगा जी? ई, और इनसाइड मेरी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. सेकेंड, any Gaussian surface inside the conductor is electrically neutral. अब हम क्या कह रहे हैं? सपोज इफ वी एज्यूम एक Gaussian surface, मतलब एक Gaussian surface का मतलब है कोई मैं एक इमेजिनरी सरफेस ले लूं इनसाइड. तो इनसाइड क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, यानी फ्लक्स E डॉट ds किसके इक्वल होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इनसाइड हम क्या क्या चलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है. तो सेकंड, एनी गॉसियन सरफेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इनसाइड टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू कितना होगा जी? नेगेटिव चार्ज. यानी चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से है, जितना पॉजिटिव है
उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस इज माय सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज, if we give a charge q, that charge always stay at outside of the surface। अगर मैं इसको एक चार्ज q दूं, इस सरफेस को q, ठीक है, और पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं, बट दिस चार्ज इज ऑलवेज स्टे एट द आउटर सरफेस, हमेशा आउटर सरफेस पे होगा, इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि इनसाइड अगर चार्ज गया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और हम पहला स्टेटमेंट कह चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो किसी भी स्फीयर में जो कंडक्टिंग हो, तो चार्ज डेंसिटी अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं, सिग्मा बी, दिस इज नॉट q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, इस तरह से नहीं होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, केवल कौन सी होगी जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं, दिस इज 4πr², यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरा ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। So this is the third point. Now, fourth is and very important. If we create a cavity in the conductor, ठीक है, charge distribution will in such a way that total electric field is zero inside. अब क्या किया, मुझ पे एक कंडक्टर तो था ही, मैंने कहा ये सपोज हमारा एक कंडक्टर था, और इसके इनसाइड हमने एक कोई कैविटी क्रिएट कर दी, ठीक है, ये इसके अक्रॉस कोई कैविटी है, एंड दिस इज माय कंडक्टर, यानी एक कैविटी क्रिएट किए हैं, ये यहाँ कैविटी है इसमें कंडक्टर में, ठीक है, और ये सपोज टोटल एरिया दिखा रहा है, वो सॉलिड एरिया दिखा के चल रहा है, एंड सपोज वी गिव ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इफ वी चूज ए गॉसियन सरफेस, अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस चूज करूं, तो वहां फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इंटरनल सरफेस ऑफ जो कंडक्टर होगी, वहां कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव क्यू। तो ये प्लस क्यू है जैसे, तो यहाँ जो सरफेस पे चार्ज होगा माइनस क्यू, इंटरनल सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो होगा, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन को भी फॉलो करना है, माइनस क्यू वहां आया, तो टोटल प्लस क्यू कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड में, ड्यू टू द चार्ज कंजर्वेशन। तो हम यही कह रहे हैं, अगर इफ यू क्रिएट द कैविटी इन द कंडक्टर, चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरह से होगा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो कंडक्टर की इनसाइड जो वॉल है उस पर माइनस क्यू, और आउटसाइड पे क्या आ जाएगा जी, प्लस क्यू आ जाएगा। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट, चार्ज स्पेयर बिहेव एज द स्पेरिकल सेल। तो जैसे हमने कहा स्पेरिकल सेल चार्ज हमेशा आउटर सेल पर होगा, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी आप डिफाइन करेंगे, ये मेरी चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगी इन केस ऑफ स्पेयर। सो दिस इज सम पॉइंट रिगार्डिंग द स्पेयर। नाउ second, we are defining electric field due to a uniformly charge distributed. Okay, now हम क्या क्या चल रहा है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए स्फीयर, ये एक मैंने स्फीयर दिखाया, एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r, एंड वॉल्यूम इज सपोज, ठीक है, रेडियस r दिखा के चलना है, एंड वॉल्यूम इज b, ठीक, एंड चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस, तो चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, मैं सिग्मा बी से दिखा रहा हूं, दिस इज Q ओवर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, एंड R इज द रेडियस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट केस लेके चल रहा है, R इज ग्रेटर देन R, यानी जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट इज आउटसाइड फ्रॉम द स्फीयर, पॉइंट इज सपोज A, एंड दिस इज डिस्टेंस इज R, में ये कह के चल रहा हूं। तो फील्ड अकॉर्डिंग गॉस लॉ, जब भी मुझे जिस भी पॉइंट पर फाइंड करना है, आप क्या करें, एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम कर लें, ठीक, तो यहां पे मैं एक इमेजिनरी सरफेस बना रहे हैं हम, एक R के इक्वल सपोज, ठीक है, ये मेरी इमेजिनरी सरफेस आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या कहता है, E.ds
दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इफ वी टेक ए एलिमेंट्री सरफेस ds, अगर मैं ले लूं तो वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर an जो है and the electric field E both are in the same direction, so E dot ds को हम कितना करेंगे E into ds, और टोटल एरिया परपेंडिकुलर था, टोटल मतलब हम टोटल चार्ज अगर एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना होगा, दिस इज 4 पाई, और r डिस्टेंस पे ले रहे हैं, दिस इज r स्क्वायर एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा जी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q ओवर r स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में है, जब पोजीशन r लेना है AR वेक्टर की डायरेक्शन में है, सो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ AR, और इस फील्ड को हम क्या कह चल रहे हैं ER। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माय फील्ड। ठीक, ये मेरे एक फील्ड की वैल्यू हो गई। दिस इज द केस फर्स्ट जो हमने फाइंड किया था। नाउ केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहना है, इन केस सेकंड, नाउ सपोज r इज लेस देन r, यानी पॉइंट क्या है, पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर। तो वही मुझे इमेजिनरी सरफेस लेना है, पॉइंट को इनसाइड दिखाना है, तो मैं ये इनसाइड एक पॉइंट दिखा दे रहा हूं, हमने सरफेस ली इमेजिनरी r। ठीक है, तो एंड दिस इज द पॉइंट r, जैसे हम ये सरफेस जिसमें मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहले चार्ज विद इन द स्फीयर r, स्मॉल r के कितना होगा, चार्ज डेंसिटी हमने Q ले ही ली है, Q इज चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी थी, दिस इज Q ओवर 4 बाई 3 पाई r क्यूब। तो चार्ज ऑफ स्फीयर r कितना होगा, दिस इज सपोज Q डैश एंड दिस इज सिग्मा इनटू वॉल्यूम B। सिग्मा की वैल्यू आ गई जी Q अपॉन 4 बाई 3 पाई r क्यूब, एंड ये वॉल्यूम कितना हो गया 4 बाई 3 इंटू पाई एंड स्मॉल r क्यूब। सो Q dash is now become equal to the QRQ upon RQ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या है, चार्ज विद इन द सरफेस। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग गॉस लॉ कितना कह के चलना, E इंटू ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज एनक्लोज बाई सरफेस कितना रहा, दिस इज QRQ ओवर RQ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आ गया जी, फाइनल एक्सप्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज QR अपॉन RQ। ठीक है, सो दिस इज माय एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड केस। क्या आया है एक्सप्रेशन, दिस इज R इज लेस देन R। तो यहां जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द होमोजेनियस स्फीयर E प्रोपोर्शनल R होगी, while in फर्स्ट केस क्या आया जी हमारा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जैसे ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, सपोज दिस इज द 1 पॉइंट, ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट, और ये दिखा रहे हम नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, और इसके साथ हमें ये दिखाना है। तो हमने क्या कहा, देखो इनसाइड ये पॉइंट A, दिस पॉइंट इज सपोज O, तो फ्रॉम OA इस पॉइंट में क्या है, R इज लेस देन R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लिनियरली दिखा रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली सेंटर दिस इज 0, एंड व्हेन R इज ग्रेटर देन R, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से, तो यहाँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, while इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, दिस इज E प्रोपोर्शनल R, मेरे इस तरह से होगा। क्लियर, तो मुझे ध्यान रखना है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ओके, ये मेरा सेकंड केस हो गया। नाउ
थर्ड केस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब मैंने क्या किया है, बस एक लाइन पे मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। दिस इज माय लाइन एंड वी हैव गिवन सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और लाइन भी क्या है, दिस इज एन इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन। तो चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा डिफाइन कर रहे हैं, कुछ बुक्स ने रो एल भी डिफाइन कर रहा होगा, रो एल एंड लैम्डा। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी डेल क्यू ओवर डेल एल, चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ एंड यूनिट इज कूलम पर मीटर। एंड क्या कह रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर, जैसे मुझे आर पे निकालना है। तो देखो, जब एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। तो इमेजिनरी जब गॉसियन सरफेस चूज कर रहा है, जस्ट वेट, तो सरफेस कैसी दिखा रहे हैं जी, एक तरह से मैं एक इमेजिनरी सरफेस हम जो दिखा के चलेंगे, जैसे ये दिखा है, बस थोड़ा सा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस एक इमेजिनरी सरफेस दिखा रहा है और आपको एक सिलेंडर ड्रॉ करना है। इससे तो अच्छी ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, जैसे ये है। एक मिनट और थोड़ा सा अच्छा कर ले तो अच्छा आ जाएगा। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माई फाइनल पॉइंट, ठीक। तो अब क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होगा ई, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर, जो एरिया लेके चलेंगे उसी डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, लेंथ हम लेके चल रहे हैं एल, ठीक है, लेंथ एल का एलिमेंट्री। तो ई डॉट डी एस, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है डी एस, तो फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स इज पास थ्रू द ओनली द साइड सरफेस, केवल साइड सरफेस से पास हो रहा है। और सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर, आर हम डिस्टेंस पे ले रहे हैं, एंड लेंथ कितनी लेके चल रहे हैं एल, सो दिस इज द सरफेस एरिया ई डॉट डी एस। और ये कितना होगा, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो एल मेरी चार्ज डेंसिटी और लेंथ एल के लिए रो एल इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और किस डायरेक्शन में है, ए आर डायरेक्शन में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ई कितना होगा, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल विल बी कैंसिल आउट इनटू आर इनटू रो एल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लिनियर चार्ज। पॉइंट क्लियर। तो यहां जो है इनवर्सली क्या है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर, ठीक। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द line charge distribution. Now next we are discussing the electric field due to a plane sheet of the charge. Okay, तो केस क्या लेके चल रहा है, now जो चार्ज है दिस इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए सीट, तो मैं एक सीट दिखा दे रहा हूं, ठीक है, एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूट ए चार्ज प्लस क्यू ऑन दिस सरफेस। इस पे हमने एक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आप कैसे दिखा के चलेंगे, जस्ट मुझे एक इमेजिनरी सरफेस लेनी है गॉसियन, तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा, जस्ट वेट, just wait, तो प्लस चार्ज हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज आ गया, ठीक है। अब इमेजिनरी सरफेस मैंने ये ले ली, तो जो फील्ड होगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा ई,
ठीक है, और एलिमेंट्री एरिया इसे ds दिखा के चल रहा है। तो चार्ज डेंसिटी दिखा के चल रहा है जी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सो दिस इज q बाई ए। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिट क्या होगी जी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो चार्ज जितना इस पॉजिटिव अगर x डायरेक्शन दे दें, सेम किधर आएगा जी मेरा नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इधर भी कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर ds कह दें। टोटल फ्लक्स फाई इमेजिनरी सरफेस के लिए कितना है, दिस इज E डॉट ds। फ्लक्स इज एन स्केलर क्वांटिटी, E और ds की डायरेक्शन दोनों सेम लेके चल रहे हैं, सो दिस इज E इंटू 2ds टोटल फ्लक्स बोथ साइड। और ये कितना होगा Q की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा इंटू ds, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया ds से मल्टीप्लाई किया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू ऑफ E कितना रहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ए एन कैप हम ये दिखा के चल रहे हैं बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस इज द ए एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द शीट चार्ज। दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्यू टू द शीट चार्ज। E इक्वल टू कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए एन कैप। क्लियर? नाउ next one is the electric field. next is electric field near a charge conducting surface। अब तक जो लिए केवल यूनिफॉर्मली हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, अब जो लेके चल रहे हैं हम कंडक्टिंग सरफेस लेके चल रहे हैं। सपोज ये मेरी कंडक्टिंग सरफेस है, अगेन इस पे भी हमने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली। अब देखो जब कंडक्टिंग सरफेस होगी, अगर मैं स्मॉल विड्थ मान लूं, इट हैज सम स्मॉल विड्थ, बहुत ज्यादा ये सपोज डेल डब्ल्यू कह के चल रहा है, एंड दिस डेल डब्ल्यू इज जस्ट वेट, जो डेल डब्ल्यू लेके चल रहा है ये, दिस डेल डब्ल्यू टेंस टू 0, बहुत कम है जी। ठीक है, दिस इज डेल डब्ल्यू। अब जरा मैं इस पॉइंट को और मिला दूं। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। ठीक, एलिमेंट्री सरफेस ले, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी वही दिखा के चल रहा है। दिस इज एरिया ds, मैंने एरिया दिखाया। ठीक, बट इनसाइड हमने क्या कहा है, डेल डब्ल्यू टेंस टू 0, p इनसाइड क्या होगा 0। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज केवल मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, केवल दिस पॉजिटिव अगर x लेके चल रहा है, तो फील्ड कितना होगा E डॉट ds, एक ही वेक्टर लेंगे ds, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले हम गॉस लॉ को फॉलो कर लें, सो दिस इज E, एरिया इज ds, q की वैल्यू चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही कह के चल रहा है, सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जब हमने चार्ज कंडक्टिंग सरफेस डिस्कस की थी, यहां देखना, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टिंग सरफेस, जब इसको डिस्कस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, जबकि इस केस में फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे फील्ड की वैल्यू है। तो दोनों में डिफरेंस क्यों है, वाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल टू द कंडक्टर, वो पहले जो चार्ज शीट है उससे डबल क्यों है। देखें, देखो देखो, जैसे मैंने अपनी शेप दिखा के चल रहे हैं एक बार। सपोज
कंडक्टिंग सरफेस थी और इस पे एक प्लस क्यू चार्ज दिया, यही तो कह के चले, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा अपॉन ए। मैं सिंपल ये मान लूं, तो अगर इसकी वजह से यहां जो फील्ड होना चाहिए सिंपल सरफेस का, चार्ज सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। लेकिन अगर कंडक्टिंग सरफेस है तो हम क्या कह रहे हैं कि इनसाइड कोई पॉइंट अगर मैं P ले लूं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसकी वजह से तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ ही रहा है। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे, यहां भी एक चार्ज डेंसिटी इस तरह से प्रोड्यूस होगी और चार्ज विल बी प्रोड्यूस और रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे देयर इज अगेन ए चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा एंड दिस चार्ज डेंसिटी इज जस्ट अपोजिट टू द दिस चार्ज। तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी जो मेरा टोटल फील्ड क्या बनेगा, 0, क्योंकि मुझे रूल को फॉलो करना है, चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द 0। तो E मेरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मुझे इसकी वजह से मिल रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना कह के चल रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू AN। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि चार्ज के मतलब अगर कंडक्टिंग सरफेस है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एंड सिंपल चार्ज सरफेस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मुझे ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सरफेस। हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने आ रहे हैं रिगार्डिंग द स्फेरिकल सेल और स्फीयर। सो 1 by 1 ध्यान देना। Some important points regarding electric field and potential due to the spherical charge distribution. So the first point is the electric field due to a uniform charge thin spherical cell at an external point is same as that due to an equal point charge placed at the center of the cell. क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्म सेल है और उस पे कोई चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, तो इससे अगर हम किसी आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, जैसे दिस पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर उसी के इक्वल होगा। एंड सेकेंड इज एंड एट द इंटरनल पॉइंट इज 0। बिल्कुल सही, चार्ज जो है सेल है तो आउटर सेल पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, नो चार्ज विद इन द सरफेस, इनसाइड मेरा कोई भी चार्ज नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, यानी हम क्या कह के चल रहे हैं, आर इज लेस देन आर इफ वी टेक द रेडियस ऑफ दिस इज आर एंड ई इक्वल टू, ये कौन सा केस है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई is inversely proportional to the R and inside electric field is 0 due to the uniformly thin spherical cell। और कंडक्टर भी ध्यान रखना इसी तरह से बिहेव करेगा, thin spherical cell। so this case also be considered as the conducting sphere, उसकी वजह से भी यही। now second point is सेकेंड क्या करा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम एज ड्यू टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये तो हमने डेरिवेशन भी किया ऊपर। एंड एट इंटरनल पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एंड 0 एट द सेंटर। देखो ये केस तो हमने डिस्कस भी किया है, एक बार और दिखा देते हैं। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो उसकी वजह से फील्ड किस तरह से होगा, ये दिस इज द केस व्हेन E इज R इज लेस देन R है तो E प्रोपोर्शनल टू द R है, व्हेन R इज ग्रेटर देन R होगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर एंड एट सेंटर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो हम कहना चाह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, now third point, the electric potential due to a uniformly charged thin spherical cell at an external point is same as due to an point charge placed at the center of the cell। क्या कह रहा है, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली सेल वही
सिंपल मैंने एक सेल ले ली, ठीक, चलो इस तरह से दिखा दें, सेल है एंड रेडियस इज आर, इसकी रेडियस आर है और चार्ज प्लस क्यू इसकी रिंग पे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, सेल है, स्फीयर है, दिस इज एन स्फीयर, ठीक है। तो आउटर जो पोटेंशियल होगा बी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। जैसे चार्ज क्यू मेरा सरफेस पर पॉइंट चार्ज जो उसके सेंटर पर रखा है, और अगर इनसाइड व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर एंड व्हेन आर इज लेस देन आर ले लें तो फील्ड की वैल्यू क्या है, एंड एट एन इंटरनल पॉइंट इज कांस्टेंट, और इंटरनल जो पॉइंट है उस पे जो बी होगा कांस्टेंट, और वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/4 क्यू बाई आर। सीधी सी बात है जी, पॉइंट पोटेंशियल क्या है, यानी वोल्टेज पोटेंशियल क्या कहा था हमने, इन्फिनिटी, चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने पे। तो यहां तक तो मुझे काम करना पड़ेगा, इसके इनसाइड कोई भी चार्ज पोटेंशियल नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा 1/4 क्यू बाई आर। Okay, this is the second point. Now third point, now the fourth point, the electric potential due to a uniformly charged sphere at an external point is same as due to an equal amount of charge placed at the center of the sphere. अब इसकी जगह आपका एक स्फीयर है, बस क्या कहा, ये एक स्फीयर है एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r, ठीक है। इसकी जो रेडियस है कितनी है जी, r इज द रेडियस, एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड r पोटेंशियल एट द आउटर पॉइंट, तो b अगेन वो पहले की तरह सेम है, 1/4 क्यू अपॉन r, इसी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मुझे इनसाइड निकालना है तो मुझे उसके लिए एक डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा बी, दैट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो बस एक हल्का सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं, यानी केस क्या है, एक केस और है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इंटरनल पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो सिंपल, बस मैं इसी फिगर को यूज कर रहा है। तो पॉइंट, दिस इज एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस और रेडियस कितनी ले रहा है, आर। तो चार्ज कितना होगा इंटरनल सरफेस पे, ठीक है, चार्ज क्यू डैश, सपोज दिस सरफेस है द चार्ज क्यू डैश, एंड वैल्यू किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इनटू द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, और ये कितना 4/3 पाई आर क्यू। So now charge q dash become equal to qrq upon rq, and the potential find करना है, potential B कितना होता है, जैसे point charge is placed at the center and charge enclosed by the surface कितना हो गया, qrq upon rq, और into कितना आ जाएगा, distance r, distance में निकालना है, so this is 1/r, so value of B become equal to 1/4 pi epsilon naught क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द इंटरनल पॉइंट जो मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की जिन्हें हमने 1 by 1 डिस्कस किया। एक बार और देख लेते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है। सो इन टुडे लेक्चर we have started with the application of the Gauss law. First, behavior of the conductor in electric field, and if we give a charge q, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज q देते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये ऑल द थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी, एक बार अगर नहीं हो तो नोट्स जरूर बना लेना। नेक्स्ट we have discussed about the electric field due to the uniform charge, कि अगर r is greater than r है, r is less than r है, this is point second, E is not the, this is E is अच्छा proportional है, R is less than R, हमने दोनों केस डिस्कस किए, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर की वजह से। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द फॉर्मूला इज, माय फॉर्मूला इज E इक्वल टू 1/2 pi epsilon naught rho L into AR. Then we will discuss about the electric field due to the plane sheet. ये important था कि plane sheet की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, क्योंकि सिंगल सरफेस की तरह ट्रीट करते हैं। But when we have a
मतलब कंडक्टिंग सरफेस। तो ध्यान रखना, जैसे हम क्या कहें, एक बार थोड़ा सा हल्का सा मैं और दिखा देता हूं। सपोज जैसे अगर कंडक्टिंग सरफेस में यहां पे एक सरफेस ले लूं एंड इसको अगर मैं प्लस क्यू चार्ज देके चल रहा हूं सरफेस को, तो इसकी वजह से कितना हो, कंडक्टिंग सरफेस को दिया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके ये होगा, लेकिन इनसाइड मेरा फील्ड 0 होना है। अगर ये सिग्मा है तो यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगा चार्ज कि देयर इज अगेन ए चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ड्यू टू दिस सरफेस एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ड्यू टू दिस सरफेस एंड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम, ये कंडक्टिंग नहीं है, थोड़ा कंडक्टिंग सरफेस के लिए दिखा रहे हैं, वो कितना होगा, दिस इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मेरा ये आएगा। क्लियर? एंड देन वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द स्फेरिकल सेल। थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना किस तरह से हम करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो, लेकिन आगे के लेक्चर के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, जिससे कि मैं आगे लेक्चर भी आपको मिलते रहे। Thank you very much. And in next lecture, we will discuss about the capacitor and the capacitance. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।